So guys, now we have reached at the Hamad port, like how we have Hamad International Airport in Doha, which is used for flights. So similarly, we have Hamad port. Recently in Qatar, this Hamad port has been opened for visitors. So back of me, the building is for visitors entry, and inside this we have lots of activities. Once you have reached here, you have ample space for car parking with shaded, though the temperature is very hot today. I believe it's around 40 degrees centigrade. And close to the car parking, there is the small play area for children where children can play. Secondly, when we go inside, we'll show you how the Hamad port is made of, and the things, whatever it is there inside, we can see. We even have in our parking charging point, so if any electric car is coming here, so they can have a charging over here. So very good facilities they have made. Nearby we have a tea time, so if we are hungry or something, so we can grab some snacks. So this is the building, guys, and the masjid is there. The Hamad port is unique in design. Visitor Center is purpose built to showcase the maritime history and the achievements of Qatar. The center includes a maritime museum, a 4D cinema, virtual simulators, auditorium, a kids play area, and an oceanic aquarium, which is the first of its kind in Qatar. The timings are from Sunday to Thursday from 8 am until 3 pm. It's in the south of Qatar in the Mesaeed area, hardly 25 minutes drive from the city Doha. This is the reception area, guys. At the reception, if you have done prior ticket booking through internet, you can show to them. If not, also you can come here and check if the slots are available. Generally, for adult above 12 years is 50 riyal, child between 5 to 12 is 30, and below 5 years is free. So see the replica of the building which they have made here. It's look really awesome. Hamad Visitors Port का एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनाया हुआ है, और इतनी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे लाइट्स रखी है. जैसे आप प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे लाइट्स ऑन होती है. तो इसका भी मज़ा नईमा, अली और शाइस्ता मिलके ले रहे हैं. तो दोस्तों, जनरली ना हम लोग ने ना प्रायर या ऑनलाइन बुकिंग कर दिया था, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ था इसका. प्रायर आप बुकिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आपको ना स्लॉट्स हैं यहाँ पे दोस्तों. स्लॉट्स है ना, ऐसा है कि लाइक ये इसके अंदर है ना मरीन म्यूज़ियम है, मरीन एक्वेरियम है, और शॉर्ट फिल्म का एक थिएटर है जिसमें 5 से 10 मिनट की 4D सिनेमा है. तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो 4D सिनेमा में कि मरीन पोर्ट पहले कैसा था और अब ये पूरा चेंजेस होकर कैसा हुआ है. तो ये पूरा हमें जो नीचे म्यूज़ियम है ये भी बताता है कि एंशिएंट टाइम में कैसा था और अब इसे इन्होंने कैसा आज के जनरेशन. तो हम लोग वैसे डिवाइड करेंगे टाइम, लाइक 2 घंटा दिया है. हमने जो टाइम स्लॉट सिलेक्ट किया था वो था 1 से 3. तो 1 से 3 के बीच में हम ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक हाफ एन आवर म्यूज़ियम में, हाफ एन आवर एक्वेरियम में, और थोड़ा सा सिनेमा में भी जाके देखेंगे. और जो प्ले एरिया तो धूप है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ नहीं है. बच्चे तो बहुत खेलते हैं. और सबसे खुशी की बात ये है, आज हम लोग इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह 10,000 फॉलोअर्स गेन किए. 10K. तो जो हमारे व्यूअर्स है यूट्यूब पे वो इंस्टाग्राम पे जाए, और जो इंस्टाग्राम के व्यूअर्स है वो आके हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देखे. और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग हमें इनकरेज कर रहे हो ना. ऐसे ही इनकरेज करते रहो हमें आगे भी. जो हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो हर कोई सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया. छोटा सा म्यूज़ियम बनाया है दोस्तों, और पुरानी एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक मरीन इंडस्ट्री कैसा रेवोल्यूशनरी लाई और कैसा फॉर्म हुई, कैसे टेक्नोलॉजीज आए, सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. So this is a giant crane. This has been made by a type of video game Naima is playing. To assist, we have the staff, and he is assisting Naima to operate the giant crane, generally which is used in the ship for loading or offloading the containers. तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एक
3D की स्क्रीन है और ये टच स्क्रीन है दोस्तों। जैसा जैसा आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऐसा क्लिक करें और ये फ़ोटोज़ भी आ जाता है यहाँ पे। तो जैसा हम पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। यूजिंग मटेरियल जो इनका डिस्क्रिप्शन दिया है, एक जिक्सॉ है जो यूज़ होता है जनरली अपने इंजीनियरिंग फील्ड में, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, देखो कैसा खुल जाता है और फिर उसका मायना बताता है यहाँ पे। तो बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके आना चाहिए। और मैं तो बोलूँ दोहा के जो स्कूल्स हैं हमारे, वो प्लीज़ आप बच्चों को यहाँ लाए पिकनिक के लिए। उनके लिए यहाँ पे लाना, बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में अपना कैरियर उन्हें जो पसंद है वो डिसाइड कर सकते हैं, इधर मरीन एविएशन या वगैरह। सो सी दिस, व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग? एनी गेसेस? If you don't have, I'll tell you, this is the Hamad Port Control Tower. Like how we have at the airport air traffic control, similarly at the seaside, this is the tower which controls the port. पीछे बिल्कुल एक हामद पोर्ट के अंदर है ना, छोटा सा सोवीनियर शॉप्स है। यहाँ पे आपको सेलर के जो सोवीनियर आइटम्स हैं ना वो देखने मिलेंगे। आइए देखते हैं। ये देखो स्टीयरिंग व्हील कि जैसा चश्मे, ये मिरर भी है। हाँ, स्टीयरिंग व्हील है बट एक मिरर है, बिल्कुल अच्छा लगा। और ये तो एंकर बोलते हैं इसे, जो काम आता है शिप को समुद्र में पार्किंग करने के लिए। पॉपॉय द सेलर मैन में हम कार्टून में बहुत देखते थे इसको। गुड रिमेम्बरेंस। तो हम लोग का अभी म्यूज़ियम का राउंड ख़त्म हो गया है। जो आप लोग ने वीडियोस देखे ना दोस्तों, वो थे म्यूज़ियम के। और अब हम अंडरग्राउंड जा रहे हैं एक्वेरियम में। और आज हम फाइनली एक फ़िश एक्वेरियम हामद पोर्ट के अंदर देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा लगता है। तो दोस्तों ये जनरली दोनों काम कर रहा है। विजिटर्स के लिए एक अट्रैक्शन बन रहा है, साथ ही में मच्छी को खाना भी खिला रहा है ये। तो देखो ये खाना जब अंदर डालने के बाद मच्छियाँ कैसा उसके पीछे पीछे आ रही है। दोस्तों बहुत अंधेरा है ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक टनल के अंदर है। एक टनल था ये जो फिश एक्वेरियम था, पूरा ग्लास से कवर था, वो क्रॉस करके हम अब यहाँ पे आए। दूसरे टनल में अंदर आने के साथ यहाँ पे स्टार फिश है। जी हाँ, एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है भाई। ये स्टार फिश को हम टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई कर रही है स्टार फिश को हाथ लगाने के लिए। लगाए? यहाँ पर भी एक है, देखो। यहाँ पर भी एक है। तो देखो दोस्तों ये स्टार फिश है। ये देखो इधर भी एक है, कड़क है, पत्थर के जैसा है। ये रहा स्टार फिश, पत्थर है ये। हाँ, पत्थर के जैसा फर्स्ट टाइम हमने हाथ लगाया है। एक स्टार फिश इधर है, दूसरी यहाँ के पत्थर पे बैठी है। ए गई नीचे। उल्टी है कि सीधी है वो? हाउ इज दिस? अप एंड डाउन। ये ये हम लोग जेलीफिश
फिश को हाथ नहीं लगा सकते। ये देख स्टार फिश, ये देखो। थोड़ा दोस्तों पानी में रखा हूँ तो देखो मैंने स्टार फिश को हाथ में लिया हूँ और ये थोड़ी सी मुझे ख्याल से डर रही है पानी से बाहर आने के लिए। जैसा मैं पानी के बाहर ले रहा हूँ ना, वो स्क्वीज़ हो रही है तो उसको पानी में रहना पसंद है। तो ये मैं अब हाथ में लिया, फर्स्ट टाइम मैंने स्टार फिश को ये लिए मैंने स्टारफिश। ये बहुत हार्ड है, जैसे ही हम हाथ में लेते हैं ना ये स्क्वीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला की कुदरत है ये, तो बहुत अच्छा लगता है ये हाथ में लेने। ये देखिए मैं अभी इसे बस पानी में छोड़ रही हूँ। वो दिख रही है, ये इसकी पूंछ के नीचे कुछ आँख देखो हिल रही है। ये वाली हाँ। इसके नीचे हाँ। ये हिल रही है आँख, देखो वो छुपाया उसको। हाँ छोटी है क्या वो? छोटी फिश है, स्टिंग रे है ना शायद, जेली फिश। ट्रेजर्स ऑफ सी जितना हम बोल सकते हैं सब है यहाँ पे, जितने भी ट्रेजर्स है। ट्रेजर तो ये है दोस्तों, जो एप्पल, जी हाँ, मोती। ये देखो ये ओरिजिनल पर्ल है दोस्तों, जो समंदर में पाया जाता है, जो कतर का पहले एंशिएंट ट्रेडिंग में यूज़ होता था। मैंने देख लिया उसे। उधर ये आपका उधर भी बोला टेंटिकल्स देखो उसके। ये है अरेबियन गल्फ की सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मच्छी इस अरब सागर में। इसका नाम है हमूर। देखो कितनी बड़ी है ये मच्छी। तीसरा आया है ये शार्क टनल। जी हाँ, यहाँ पे बेबी शार्क्स है दोस्तों, जिसका मज़ा हमने मालदीव्स में लिया है। طولت علاش طولت؟ قعدت ساعة وما خرجتش منها. मैंने 5 आठ के बोलते इधर सी हाफ भी हमने तैयार। ये है ऑडिटोरियम हॉल मेरे पीछे, जहाँ पे 5 मिनट्स का सिनेमा रहेगा। यानी हमद पोर्ट का हिस्सा डेवलप हुआ। ये है हमद पोर्ट की पुरानी पिक्चरिनेशन टाइम्स, जब आज से 100 साल पहले कैसा था। दोस्तों फाइनली हम लोग है ना अंदर आके बैठ गए, और अंदर आने के साथ है ना हम लोग को ये ग्लासेस दिया है 3D इफ़ेक्ट्स के, और ये सीट है, सीट पे ना सीट बेल्ट है, और हमने पेन लिया है। ये सिनेमा की झलक है दोस्तों। ज़्यादा पब्लिक को नहीं लेते, 4 की 3 तो है, तो लाइक 12 पीपल्स ही आते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट्स है ना बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। वीडियो में ड्यूरिंग नहीं ले पाऊँगा मूवी के। मूवी के बाद मैं आप लोग को शाइस्ता में मिलके बताएंगे कैसा था। सुना है कि इफ़ेक्ट्स हो गए, जैसा हम लोग 3D मूवीज़ देखने जाते हैं ना, वैसा इफ़ेक्ट रहेगा दोस्तों। मूवी देख के हम फिर वीडियो में आगे बताएंगे कैसी थी मूवी। देखो हमने चश्मे लगा के बैठ गए हैं अब, और मूवी चालू होगी स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ। जैसा क्विस्ट में अली ने देखा था ना, सेम वैसा ही होने वाला है दोस्तों। السفن الدحرجة عدد كبير من الرافعات الشاهقة بارتفاع 9 متر في محطات الحركات ومحطات متخصصة للفضائع العامة والحروب الساخنة تتعامل مع ملايين الأطنان كل عام. يحقق الحملات داخل القطر
من أرض الفضاء إلى مركز للتجارة العالمية هذا هو الإنجاز الأولي للقطار. شكرا لوجودكم معنا في هذه الرحلة. هناك سفينة أخرى قد رست للتو. علي الذهاب للترحيب بطاقمها، فالعمل هنا في بناء حمد لا يتوقف أبدا. رافقتكم السلامة. यहाँ पे आने के बाद इसका मज़ा लेना वर्थ है मेरे हिसाब से। बाकी शाइस्ता का क्या रिव्यू से शाइस्ता बताए। और पानी भी इफेक्ट्स, पानी के इफेक्ट्स जो एक्चुअली 4D के रहते हैं ना वो पूरे हैं उसमें। और ऐसा लग रहा है अभी भी हमारा है ना एक्चुअली सर घूम रहा है क्योंकि वो झूम बराबर है झूम। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पूरी इंफॉर्मेशन थी लाइक 90s से कैसा ग्रो हुआ है मरीन। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा के फिर हमद पोर्ट इन्होंने कैसा डेवलप किया, पानी में कैसा ये लोग ने मतलब रेक्लेन करके उसको ज़मीन बनाकर फिर बाद में छेद करके समंदर का पानी अंदर लेकर एक डॉक बनाया। वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मूवी था। थोड़ा सा आप लोग ने देखे, बीच बीच में मैंने वीडियो निकाला हूँ, पूरा नहीं निकाल सका क्योंकि मुझे भी मज़े लेने थे इफ़ेक्ट्स के। लेकिन दोस्तों प्लान करें यहाँ आने का, वर्थ है। मवानी कतर का जो ग्रुप है यहाँ पे कतर में, उन्होंने हमद पोर्ट पे इतना बेहतरीन विजिटर्स के लिए एक कॉन्वोकेशन सेंटर बनाया है जहाँ पे हम आके स्टडी कर सकते हैं कि कैसा है यहाँ का मंज़र। फुरकान घड़ी घड़ी जो हमद इंटरनेशनल बोल रहे हैं बिकॉज हम बहुत यूज़ टू है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलने के लिए। हमद पोर्ट बहुत कम बोला जाता है तो इसलिए, और बहुत रीज़नेबल रेट्स है इसके। तो प्लीज़ आप लोग आइए और यहाँ के मज़े लीजिए। ऑन अ सीरियस नोट प्लीज़ 1 वीक प्रायर अपने टिकट्स बुक कीजिएगा क्योंकि टिकट्स अवेलेबल जल्दी नहीं मिलते हैं। और 4D जो सिनेमा है वहाँ पे 12 सीट्स ही अवेलेबल रहते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, अपना स्केड्यूल बनाइए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, मास्सलामा।